Jai Hind friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study respiration in organisms. Now start the lecture and understand what is respiration in organisms. See, respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of organisms obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating CO2 from oxidation of complex organic substances, which simply means कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तभी जाकर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है एंड जो सेल्स हैं वो एनर्जी को ऑब्टेन कर पाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है या एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम फूड, दिस इज ट्रू, बट जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी ऑब्टेन तभी हो सकती है जब उस फूड का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकता है। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है विच मीन्स थ्रू रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज अपील्ड टू द सेल्स and in the presence of oxygen the oxidation of food takes place and energy is obtained in the form of ATP, right? तो इस तरीके से अगर हम जो है लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में समझें तो राइट, टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, राइट, टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स organisms consume food and through the digestion process, right, through digestion process this food is converted into digested food, right? Or what is the mean of digested food? This means that this food, right, the food which is containing large and water insoluble molecules through digestion converted into small and water soluble molecules, right? और ये जो digested food है ये ग्लूकोज के रूप में, किसके रूप में, राइट, ग्लूकोज के रूप में जो है डिफरेंट ऑर्गन्स तक या ऑर्गन्स की सेल्स तक पहुंचाया जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है या जो डाइजेस्टेड फूड है, राइट, ये सीधा एनर्जी के रूप में यूज नहीं किया जाता है, राइट, क्योंकि इससे एटीपी के रूप में एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। बट जब इस ग्लूकोज का, राइट, C6H12O6 का जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट, सो व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिससे क्या बनता है, 6CO2 बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ एटीपी के रूप में क्या होती है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। फिर जाकर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस एनर्जी का अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पाते हैं। और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और ये एक क्या होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, राइट। और इस प्रोसेस में या रेस्पिरेशन में जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, इन दिस प्रोसेस या इन द रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स obtains energy in the form of ATP। और चाहे कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हो या डोमिनेंट मल्टी सेल्यूलर हो, सब में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रेस्पिरेशन in organs. If this is asked as a 5 marker question, then we can write this answer, right? Respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. And this respiration is a metabolic process that occurs in all organisms, and this is a biochemical process, right? Through respiration the energy adenotriphosphate is obtained or produced by the breakdown of glucose, which is further used by cells to perform various functions. And this respiration is required for every living species from a single celled organism to dominant multicellular organism to fulfill their energetic requirement. Clear? Now we will focus on respiration in
organisms. In the previous lecture we have studied different types of, right, in the previous lecture we have studied different types of respiration as well as we have studied respiratory process, but in this lecture we would understand what is the procedure of respiration in different ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं. जैसे ह्यूमंस में लंग्स पाए जाते हैं, कुछ जो वर्टेब्रेट्स हैं उनमें भी लंग्स पाए जाते हैं, बट इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन हैं या रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं वो अलग होते हैं. अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अलग होते हैं, राइट. सो वी विल स्टडी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, और चूंकि सिलेबस में ऑर्गेनिज्म वर्ड दिया हुआ है, देयरफॉर वी हैव टू स्टडी डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक विद वन बाय वन, राइट. एट फर्स्ट वी विल स्टडी, तो अभी जो हमने समझा है वो क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी विल स्टडी रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, then we will study respiration in animals, we will study respiration in earthworms, respiration in aquatic animals, respiration in plants and respiration in humans. अब यहाँ से 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, या व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है. वहीं जो अर्थवॉर्म है इसका 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट. व्हाट इज द रेस्पिरेशन, या एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन द अर्थवॉर्म, राइट. या 5 मार्कर का इंसेक्ट्स के लिए रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ये जो है 3 मार्कर में पूछा जाएगा, क्योंकि जो वर्टेब्रल्स होते हैं उनमें लंग्स ही पाए जाते हैं. तो रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है. एनिमल्स में जो है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है. अर्थवॉर्म में 3 मार्कर का पूछा जा सकता है. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो है 5 मार्कर का पूछा जा सकता है, और प्लांट्स में भी जो है 5 मार्कर से पूछा जा सकता है. तो वी विल डील दिस टॉपिक वन बाय वन. द फर्स्ट इज रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स. अब जो इंसेक्ट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको समझते हैं. सी, जो इंसेक्ट्स हैं, या स्पेशली अगर हम देखें कॉकरोच की, तो कॉकरोच has small openings on the sides of its body and other insects also have similar openings. तो उनकी जो साइड्स ऑफ बॉडी होते हैं उनमें सिमिलर क्या पाए जाते हैं, ओपनिंग्स पाए जाते हैं. ये जितने जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी साइड्स ऑफ द बॉडी में स्मॉल क्या होती हैं, इस ओपनिंग्स होती हैं. और इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूबल्स, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है, और किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए. तो 2 चीजें याद रखनी है, एक तो जो है स्मॉल ओपनिंग्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ एक एयर ट्यूब्स पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं. जो ट्रेकिया है, ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पाइरल्स इनटू द ट्रेकिया ट्यूब्स, और जो स्पाइरल्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि जो ट्रेकिया है वो मजबूत हो जाए, राइट. डिफ्यूजेस इन द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो जो ट्रेकिया है उसके माध्यम से ही बॉडी में प्रवेश करती है, और जो है हर एक सेल में क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेकिया ट्यूब्स और मूव्स आउट थ्रू स्पाइरल्स, राइट. इस तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं, ओनली इंसेक्ट्स में ये रेस्पिरेशन की क्या होती है, प्रोसेस होती है. तो ये हमारा 5 मार्कर के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही क्या है, सिंपल है. आपको पहली चीज क्या याद रखनी है कि लाइक कॉकरोच, राइट, कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग्स. यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, तो कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, एंड लाइक cockroach other insects have also similar openings. Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchange, right. Oxygen rich air rushes through the spirals into the trachea tubes. वहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है बॉडी टिश्यूज में, और इस तरीके से ऑक्सीजन रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the trachea tubes and then moves out through the spirals,
right? And this air tubes or trachea are found only in insects, not in the group of animals. Clear? Now we will study respiration in animals. Animals में किसके द्वारा होता है? तो देखिए, animals such as elephant, lions, cows, goats, right, frogs, lizards, right, birds have lungs in their chest cavities just like human beings. और इनमें लंग्स के माध्यम से ही क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. तो यदि 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो हम सिंपल लिखेंगे एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, animals such as elephant, lions, cows, right? Human beings have lungs in their chest cavity, right? And most of the animals have lungs for their respiration. Clear? तो most of the animals such as elephants, lions, humans, right, have lungs for their respiration. अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है. तो देखिए, जो अर्थवॉर्म है उनमें रेस्पिरेशन होता है उनकी स्किन के द्वारा, क्योंकि अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. और जो अर्थवॉर्म है उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, साथ ही साथ क्या होती है? स्लिमी होती है. एंड दिस मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन अलाउज इजी मूवमेंट्स ऑफ गैसेस, राइट? और इसी की वजह से गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है. इसके साथ ही अगर हम देखें फ्रॉग, राइट, ऑल्दो फ्रॉग हैव लंग्स, जब जो है फ्रॉग इज एम्फीबियन, जब वो वाटर में रहता है तो उसकी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, और जब वो जो है टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में आता है तो उसमें लंग्स से वो रेस्पिरेट करता है. तो ऑल्दो फ्रॉग्स हैव लंग्स, राइट, लाइक ह्यूमन, बट फ्रॉग्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड क्या होती है? स्लिपरी होती है. तो इन दस बिल्कुल 3 मार्कर के लिए आपका उत्तर हो जाएगा रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स. तो आपको लिखना है कि सिंस द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज मॉइस्ट एंड स्लिमी एंड earthworms breathe through their skin. In this way earthworm respires through their skin. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फ्रॉग्स की, राइट, तो जो फ्रॉग्स में भी क्या पाई जाती है? मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन पाई जाती है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है और वो रिस्पायर कर पाते हैं. नाउ वी विल स्टडी रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक है, या जो वाटर में रहते हैं. तो देखिए, द मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें रेस्पिरेशन किसके माध्यम से होता है? गिल्स के माध्यम से होता है. तो जैसे एनिमल्स में, ह्यूमंस में लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है, वैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में गिल्स के माध्यम से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. और दरअसल जो गिल्स हैं वो स्किन के ही क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं. तो गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन्स. और जो गिल्स हैं उनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, राइट, और इन्हीं ब्लड वेसल से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो इस तरीके से गिल्स हेल्प देम टू यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में फिशेज हो जाएगी. तो इस तरीके से 5 मार्कर के लिए हम जो है पढ़ चुके हैं. तो इन मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, right, in most aquatic organisms respiration occurs through gills, and gills are the projections of the skins. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. Therefore gills in aquatic organisms help to utilize the oxygen dissolved in the water. For an example, fishes. Next हो जाएगा यहाँ पर respiration in plants. Clear? See, we know that plants are autotrophic and plants synthesize their own food in the presence of sunlight using chlorophyll. और जब फूड का सिंथेसिस होता है तो उसमें जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. एंड जो CO2 है उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है. टू सिंथेसाइज द फूड प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड, राइट, यूजिंग CO2 and release
O2, बट जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट्स भी O2 को ही क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या O2 को ही क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और किसके माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से। सो लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर टू सर्वाइव एंड दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स एब्जॉर्ब, राइट, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। बट जब प्लांट रेस्पायर करते हैं तो वो एनवायरनमेंट से O2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो वेरी सिंपल, लाइक लिविंग organisms, plants, right, like living organisms, plants also respire to survive and they take in oxygen from the environment and release carbon dioxide. Oxygen is also used in their cells to break down glucose, right, glucose into carbon and water, जैसे कि क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ये तो पूरी पूरी वही प्रक्रिया है। एक अंतर ये है कि जो प्लांट्स हैं उनका ईच ऑर्गन जो है इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और जैसे अगर हम देखें तो जैसे क्या हो जाएगा, फ्रॉग में या जो अर्थवॉर्म है उसमें क्या होती है, स्किन होती है। वहीं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स जो है, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। इन द सेम वे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स में टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। और इसी स्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रहा है, कंप्लीट होता है। साथ ही साथ जो रूट्स होती हैं, राइट, लाइक अदर प्लांट सेल्स, रूट्स आल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड रूट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द स्पेस इन द सॉइल, राइट। तो जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन होती है तो उससे लेते हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो तो वही है, केवल और केवल आपको यही याद रखना है, स्टोमाटा, राइट। तो 5 मार्कर के लिए रेस्पिरेशन इन क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। तो लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर टू सर्वाइव एंड प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। Plants use oxygen, right? Oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water as जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होता है। साथ ही साथ एक कैरेक्टरिस्टिक जो विशेष है, each organ in plant can independently take in oxygen from the air and release carbon dioxide। और इसके लिए the plants have leaves and the leaves of plants have tiny pores जिनको स्टोमाटा कहा जाता है and these stomata are used for respiration। इन्हीं स्टोमाटास के जो स्टोमाटा हैं उनसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ जो रूट सेल्स हैं वो भी रेस्पायर करती हैं और जो रूट सेल्स हैं, राइट, तो द रूट सेल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द स्पेस, right, between the soil particles। clear। now last हो जाएगा respiration in human, right। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए रेस्पिरेशन क्या होती है, इसको मैंने अभी बताया था कि रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP by taking in oxygen, liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। अब रेस्पिरेशन के लिए जो पूरा का पूरा ऑर्गन्स का ग्रुप है वो ह्यूमन में पाया जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द लंग्स। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, परंतु इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो क्या होता है, लंग्स होता है, जिसमें ही एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, गैसेज होता है, राइट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है, लंग्स है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। देयरफॉर
the respiration in human is also known as pulmonary respiration. The human respiratory system includes all those organs which exchange, right, in which the exchange of air takes place, such as nostril, nasal passage. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सभी ऑर्गन्स आ जाते हैं इन विच द एक्सचेंज ऑफ एयर टेक्स प्लेस, राइट, सच एज nostrils, then nasal passage, then pharynx, then larynx, right, then trachea, bronchus, bronchi, bronchioles and क्या हो जाएगा, lungs हो जाएगा, और एक साथ ही इसमें डायफ्राम भी छूट गया है. तो हम इन सभी ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी मेंशन है. तो इन सब के बारे में 3 मार्कर और 5 मार्कर के लिए हमको ये प्रिपेयर करना है. क्लियर. तो जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन है उसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल डाइजेशन जैसा ही आपको क्या बनाना है, यहाँ पर डायग्राम बनाना है, राइट, और फिर डायग्राम के माध्यम से ही जो है पूरा का पूरा हमको यहाँ पर समझना है. क्लियर. तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर लंग्स पाए जाएंगे. क्लियर. तो मैं आपको समझाते समझाते जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में भी आए. फिलहाल में हम यहाँ पर ये जो है आइस बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है, ह्यूमन है. ठीक है. तो ये यहाँ पर हो जाएंगी आइस. क्लियर. ये क्या हो जाएंगे, एयर्स हो जाएंगे, और ये यहाँ से क्या जाएगी, नोस्ट्रिल जाएगी, जिसको हम आगे समझेंगे, राइट. तो जो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, नोस्ट्रिल्स हो जाएगा. तो इन ह्यूमंस द नोस्ट्रिल्स आर लोकेटेड जस्ट अबव द माउथ एंड देयर आर 2 सर्कुलर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स विच ओपन्स इनटू द नजल पैसेज इनसाइड. और इनसे क्या करती है, तो ये जो है हमारे क्या है, ये हमारा माउथ है, इसके ऊपर ये जो 2 होल पाए जाते हैं इनको ही क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, राइट. तो यहाँ पर डायग्राम में तो आपको शायद एक ही दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नोस्ट्रिल्स हो जाएगा. ठीक है. तो जो नोस्ट्रिल्स है ये जस्ट अब कहाँ पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, जो कि अंदर ये जो पूरा का पूरा इधर है इसको क्या कहा जाता है, नसल पैसेज कहा जाता है. क्या कहा जाता है, नसल पैसेज कहा जाता है. तो ये जो है पूरा का पूरा ये यहाँ से ये जो है ये क्या हो जाएगा, नसल पैसेज हो जाएगा, राइट. तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नसल पैसेज, राइट. तो ये नसल पैसेज हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोस्ट्रिल्स हो जाएगा. क्लियर. तो जो सर्कुलर होल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स कहा जाता है. तो सीधी सी बात है, 3 मार्कर के लिए अगर नोस्ट्रिल्स के बारे में पूछे तो हम सीधा लिख सकते हैं कि देयर आर 2 सर्कुलर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. तो देयर आर 2 सर्कुलर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स विच ओपन इन द नसल पैसेज इनसाइड, राइट, विच ओपन्स इनटू, यहाँ पर नसल पैसेज आएगा. क्लियर. तो देखिए देयर आर 2 सर्कुलर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स विच ओपन इनटू nasal passage inside and air enters through these nostrils and these nostrils are located just above the mouth. Then second क्या हो जाएगा, nasal passage हो जाएगा. तो nasal passage क्या है, तो देखिए जो नेसल पैसेज है उसका फंक्शन है स्मेल करना. क्या करना, स्मेल करना. द इम्पोर्टेंट या मेन फंक्शन ऑफ द नेसल पैसेज इज टू स्मेल, और यह एक गेट के रूप में कार्य करता है, राइट. इट आल्सो एक्ट्स एज द गेट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं. क्लियर. तो जो ट्रेकिया का गेट है वो हमारा क्या है, नेसल पैसेज है, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हो सकता है एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, या हार्मफुल जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी हमारी ट्रेकिया के माध्यम से लंग्स में पहुंच सकते हैं. और लंग्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. अगर लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो उससे ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, जिसको हमने कोरोना पैंडेमिक में बहुत अच्छे से समझा था, राइट. तो कोई भी
डस्ट पार्टिकल है या हार्मफुल पार्टिकल है या बैक्टीरिया है वो हमारी इनर कैविटी या ट्रैकिया में एंटर ना कर सके, इसके लिए जो नसल पैसेज है वो गेट कीपर के रूप में कार्य करता है। तो इट आल्सो एक्ट्स एज द गेट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। और इस नसल पैसेज में एक इनर कैविटी पाई जाती है, राइट। सो इट्स इनर कैविटी इज लेयर्ड इन म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इससे 1/2 लीटर ऑफ म्यूकस जो है डेली रिलीज होता है। ये जो म्यूकस है ये डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया को या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देता है, राइट। तो एक तो ये हमारी बॉडी में या ट्रैकिया में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको एंटर नहीं होने देता है, साथ ही साथ इट मेक्स द एयर एंटरिंग द बॉडी मॉइस्ट एंड इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। ये इसके दो क्या होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं। क्लियर। तो यहां पर आपको समझ में आ गया नसल पैसेज क्या होता है। तो देखिए द मेन फंक्शन ऑफ nasal passage is to smell, and this nasal passage acts as the gate of the respiratory tract or trachea, right, trachea, because ये जो ट्रैकिया है इसमें यह हार्मफुल सब्सटेंसेस को इंटर नहीं होने देता है। उसका कारण क्या है कि द इनर कैविटी ऑफ नेसल पैसेज इज लेयर्ड इन म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे 1/2 लीटर म्यूकस डेली रिलीज होता है। और दिस म्यूकस प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। साथ ही साथ ये जो म्यूकस है या जो नेसल पैसेज है, दिस मेक्स एयर एंटरिंग द बॉडी मॉइस्ट एंड इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां पर फायरिंग्स हो जाएगा। क्लियर। तो फायरिंग्स इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द नेसल पैसेज एंड दिस इज वेयर ट्रेकिया बिगन्स। तो यहां से जो लॉन्ग ट्यूब है उसको ही क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है। तो ये यहां पर नोस्ट्रल्स हो जाएंगे, नेसल पैसेज हो जाएगा। अब यहां से जो ट्रेकिया है, लेकिन ट्रेकिया में यहां पर एक जो है जो ऑर्गन्स पाया जाता है, सॉरी थोड़ी और नीचे आएगा, यहां पर ये इसको क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है, या ये क्या हो जाएगा, वॉइस बॉक्स हो जाएगा, राइट। ये लैरिंग्स हो जाएगा। और इसके ठीक थोड़ा ऊपर जहां से जो ट्रैकिया स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फायरिंग्स कहते हैं, राइट। और मैंने बताया था कि जो फायरिंग्स है वो नॉट ओनली द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फायरिंग्स है, राइट, तो फायरिंग्स इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द नेसल पैसेज, और यहाँ से ही ट्रैकिया क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये जो फायरिंग्स है, फायरिंग से ही नेसल पैसेज शुरू होता है, और यहाँ से जो है जो फायरिंग्स है वो नेसल पैसेज के नीचे होता है और यहाँ से ट्रैकिया क्या होता है, स्टार्ट होता है। एंड फायरिंग्स इज द कंबाइंड ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी ट्रैकिया के नीचे एक क्या होता है, लायरिंग्स होता है, राइट, और जिसको ही क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो द पार्ट ऑफ ट्रैकिया दैट कनेक्ट्स द फायरिंग्स टू द ट्रैकिया इज नोन एज लायरिंग्स। और लायरिंग्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, साउंड प्रोडक्शन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंठ कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एट द एंट्रेंस ऑफ दिस लायरिंग्स देयर इज अ थिन लीफ लाइक वाल्व, जिसको ही क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। और ये एपिग्लोटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जो फायरिंग्स होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन होता है, राइट। तो कुल मिलाकर जब कभी भी हमको कुछ भी निगलना हो, राइट, व्हेन एनीथिंग इज स्वॉलोड, राइट, स्वॉलोड, तो एपिग्लोटिस जो है वो किसको, ट्रैकिया को क्लोजेस करता है। क्योंकि अगर हम कोई भी फूड पार्टिकल को निगलेंगे और अगर ट्रैकिया ओपन होगी तो फूड पार्टिकल किस में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, एंड दिस में क्रिएट डेंजरस प्रॉब्लम, राइट। तो इस वजह से हमारी ट्रैकिया में जो है फूड पार्टिकल्स ना जा सके, और जो हमारी एसोफेगस है, राइट, एसोफेगस है
उसमें एयर ना जा सके, इसके लिए क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर किसको समझ लिया है, लायरिंग्स को समझ लिया है। और लायरिंग्स कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। इसकी स्पेलिंग जरा मैंने दूसरी लिख दी है, इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। तो लायरिंग्स ये पाया जाता है यहाँ पर, क्लियर। तो लायरिंग्स जो कि क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। तो लायरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स होता है और यहीं पर क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो द पार्ट ऑफ ट्रैकिया दैट कनेक्ट्स द फायरिंग्स टू द ट्रैकिया इज नोन एज लायरिंग्स। और जो लायरिंग्स है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। At the entrance of the larynx there is a thin leaf-like valve जिसको क्या कहते हैं, epiglottis कहा जाता है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने सुना होगा, कहा जाता है कि when you eat, right, you should eat quietly। क्यों? क्योंकि when anything is swallowed the epiglottis closes the trachea preventing the food entering the trachea। और अगर एपिग्लोटिस बंद नहीं होगा तो जैसे फूड पार्टिकल जाएगा, जोर से आपको खांसी आती है, कफ आती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड लायरिंग्स और वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। देखिए द लायरिंग्स इज अटैच्ड टू द ट्रैकिया, और जो ट्रैकिया है वो थैरोकिक कैविटी में ही क्या होती है, ओपन होती है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। और ये ट्रैकिया आगे जाकर, राइट, आगे जाकर दोनों ही लंग्स में क्या होती है, खुल जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम अगर इस डायग्राम को देखें तो जो लायरिंग्स है, राइट, लायरिंग्स से ही क्या जुड़ा रहता है, ट्रैकिया जुड़ा रहता है, राइट। सो दिस इज ट्रैकिया, 1 मिनट, राइट। सो द ट्रैकिया इज कनेक्टेड टू द लायरिंग्स, राइट। सो दिस इज ट्रैकिया। और जो ट्रैकिया है वो थैरोकिक कैविटी में जाकर दो पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, राइट। और इन दोनों पार्ट्स को ही क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोंकस हो जाएगा, क्लियर, 1 मिनट। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोंकस हो जाएगा। चलिए, अब तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रैकिया हो जाएगा, और उसके बाद में ये दोनों के दोनों लंग्स में जाकर, डायग्राम बड़ा हो रहा है थोड़ा और इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर यहां पर ये जो ट्रैकिया है ये दोनों ही लंग्स में जाकर दो ब्रोंकस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट लंग्स हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट जो है लंग्स हो जाएगा। अब ये आपको जो है लेफ्ट जो लंग्स है वो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि जो लेफ्ट लंग्स होता है वो थोड़ा सा साइज में छोटा ही होता है, और वहीं जो राइट लंग होता है वो साइज में थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, दोनों लंग्स हो जाएंगे, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से जो ट्रैकिया है वो दोनों लंग्स में जाकर क्या होती है, ओपन होती है, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। और जो है इसमें क्या पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती हैं, और जो रिंग्स हैं, कंप्लीट रिंग्स आर फाउंड थ्रू आउट इट्स लेंथ टू स्ट्रेंथन द थिनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया टू प्रिवेंट्स इट्स वॉल, राइट, फ्रॉम स्टिकिंग। और ये आगे जाकर किसमें, थैरोकिक कैविटी में डाउनवर्ड जाती है, और वहां पर जाकर ये लंग्स में, दोनों लंग्स में किसमें डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। तो यदि आपसे ट्रैकिया के बारे में पूछा जाए व्हाट इज ट्रैकिया, तो आप वहां पर पूरा का पूरा उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रैकिया, द लैरिंक्स इज अटैच्ड टू द ट्रैकिया, राइट। दिस ट्रैकिया इंटर्स द थैरोकिक कैविटी, राइट। इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, और ट्रैकिया में कंप्लीट रिंग्स पाई जाती है। तो कंप्लीट रिंग्स आर फाउंड थ्रू आउट इट्स लेंथ टू स्ट्रेंथन द थिन वॉल, राइट, ऑफ द ट्रैकिया, ताकि इसकी जो वॉल है वो प्रोटेक्ट हो और स्टिक ना हो पाए। द ट्रैकिया इंटर्स द थैरोकिक कैविटी डाउनवर्ड एंड डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है।
अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रोंकस, द ब्रोंकस ऑन बोथ साइड्स इंटर बोथ लंग्स, तो ये बोथ लंग्स में इंटर करते हैं। सही, अगर हम देखें तो जो राइट साइड ब्रोंकस है वो राइट साइड ब्रोंकस जो है राइट लंग में जाती है, और जो लेफ्ट साइड ब्रोंकस होती है वो आगे जाके लेफ्ट लंग में प्रवेश करती है। जो राइट साइड ब्रोंकस होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है। इन द सेम वे जो लेफ्ट पार्ट में जो ब्रोंकस होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, राइट, ब्रोंकी कहा जाता है, राइट। और फिर जो ब्रोंकी है वो आगे जाकर थिन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकीओल्स कहा जाता है। क्लियर? तो अगर आप हमारे डायग्राम को अगर हम फोकस करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट लंग हो जाएगा, जिसमें ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ब्रोंकस हो जाएगी। तो ब्रोंकस को मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर कौन सा, येलो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोंकस हो जाएगा। तो ये जो ब्रोंकस है राइट लंग में कितना, 3 में, राइट लंग में जो है 3 में, 1 मिनट, राइट जो लंग है इसमें कितने, 3 में ये क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। चलिए, तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये जो ट्रेकिया ये 2 लंग्स में, दोनों लंग्स में जाकर 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। फिर ये ब्रोंकस 3 भाग में इस तरीके से, ये 3 में डिवाइड हो जाएगी, और ये केवल और केवल किस में, 2 में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। फिर ये जो ब्रोंकी हैं ये तीनों क्या कहलाएंगी, ब्रोंकी कहलाएंगी, और ये ब्रोंकी फिर किस में, कई ब्रोंकीओल्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती हैं। और इस तरीके से जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, चलती रहती है। और इस तरीके से जो लंग्स हैं वो आखिर में जाकर किस में, यहाँ पर जो पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, एल्यूवोली कहा जाता है। ये क्या हो जाएंगे, एल्यूवोली हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्यूवोली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रैकिया जाकर दोनों लंग्स में जाकर दोनों भाग में डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकस। तो ये हो जाएगी ब्रोंकस, राइट। ये राइट लंग की राइट ब्रोंकस, लेफ्ट लंग की क्या हो जाएगी, ये जो है ये क्या कहलाएंगी, ब्रोंकस कहलाएंगी। क्लियर? फिर ये जो ब्रोंकस हैं ये 3 किस्म में डिवाइड होती हैं राइट साइड में। अगर हम देखें तो जो राइट लंग है उसमें 3 क्या पाई जाती हैं, ब्रोंकी पाई जाती हैं। ये 2 इसमें पाई जाती हैं, राइट। तो ये जो नीले कलर की हैं ये क्या हो जाएंगी, ब्रोंकी, राइट। और यहां पर भी ये क्या हो जाएगी, ब्रोंकी हो जाएगी। क्लियर? अब जो ब्रोंकी है ये कई किस्में डिवाइड हो जाती है ब्रोंकीओल्स में। तो जो सबसे छोटी संरचना हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ब्रोंकीओल्स, ये ब्रोंकीओल्स हो जाएगी। और ब्रोंकीओल्स पर ग्रेप्स लाइक जो संरचना पाई जाती है उसको एल्वियोवोली कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ब्रोंकस के बारे में। तो देखिए द ब्रोंकस, अभी हमने समझा था कि जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे जाकर 2 ब्रांचेस में टूट जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस क्या होता है, द ब्रोंकस ऑन बोथ साइड इंटर्स बोथ द लंग्स। जो राइट साइड ब्रोंकस होती है वो राइट लंग में इंटर होती है, जहां पर वो 3 पार्ट में, जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है, उसमें डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट साइड की जो ब्रोंकस है वो 2 पार्ट्स में जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। और ये ब्रोंकी आगे जाकर किस में डिवाइड हो जाती हैं, ब्रोंकीओ में डिवाइड हो जाती हैं, राइट। तो ये 2 ब्रोंकस हैं, ये राइट वाली आगे जाकर 3 ब्रोंकी में, लेफ्ट वाली 2 ब्रोंकी में। फिर ये जो ब्रोंकी है ये ब्रोंकीओल्स में, और ब्रोंकीओल्स में क्या पाई जाती है, एल्वियोली पाई जाती है। ये क्या हो जाएंगी, एल्वियोली हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर एल्वियोली को पढ़ते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर फंक्शनिंग है। क्लियर? एल्वियोली। तो देखिए
जो ब्रोंकीओल्स होते हैं उन पर स्मॉल ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको ही एल्वियोवोली कहा जाता है। और एक लंग में 300 मिलियन एल्वियोवोली पाई जाती हैं, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। कुल मिलाकर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन between the O2 present in the air taken from the outside in the alveoli and O2 present out the alveoli is known as gas exchange। तो जो गैस एक्सचेंज है वो एल्वियोवोली में होता है, राइट, और किसके माध्यम से होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के माध्यम से ही होता है। तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो O2 जो कि किसमें, एयर में प्रेजेंट होती है, और जो एल्वियोवोली की जो वॉल होती है उस पर CO2 प्रेजेंट होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। क्लियर। तो एल्वियोवोली क्या होती हैं, सी स्मॉल ग्रेप्स, स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स व्हिच आर नोन एज alveoli, and there are about 300 million alveoli in the each human lung। तो एक ह्यूमन लग में 300 बिलियन alveoli पाई जाती है, and this is the structural and functional unit of the lung। क्योंकि इसी के माध्यम से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। the exchange of gases through the respiratory membrane in the alveoli। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो O2 जो कि प्रेजेंट होती है एयर में टेकन फ्रॉम द आउटसाइड इन द एल्वियोली, एंड जो एल्वियोली के जो ऊपर अब जो CO2 पाई जाती है उनके बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा एक्सचेंज होता है। और इस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लंग्स, वो इस तरीके से एल्वियोली के द्वारा ही कंप्लीट कराया जाता है। देयरफॉर एल्वियोली इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर लंग्स। सो देयर इज अ पेयर, ध्यान रखें, अ पेयर मतलब कितने, दो। सो देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन ह्यूमन थैरोकिक कैविटी, जिनका कलर क्या होता है, रेड होता है, और शेप कैसा होता है, कोनिकल होता है, शंकु के समान में। द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो राइट लंग है उसमें ब्रोंकस कितनी, 3 ब्रोंकी में डिवाइड होती है, जबकि जो लेफ्ट लंग है उसमें ब्रोंकस 2 ब्रोंकी में डिवाइड होती है। इसीलिए जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, राइट। और जो ईच लंग है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा जो है घिरा रहता है, जिसको राइट प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। साथ ही साथ देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स इन द लंग्स वेयर O2 गोज इनटू द ब्लड एंड CO2 कम्स आउट। और जो लंग्स हैं उनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वियोली ही होती है। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट। ये एल्वियोली हो जाएंगे, और इसके नीचे ही यहाँ पर क्या पाया जाता है, जो है इस तरीके से डायफ्राम पाया जाता है। तो ये जो लंग्स हैं, ये हमने लंग्स के बारे में भी यहाँ पर समझ लिया है, ये क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम अगर लंग्स के बारे में देखें तो मैंने बताया था कि अ पेयर मतलब 2 लंग्स पाए जाते हैं, राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है, राइट। और लंग्स में हर एक लंग में 300 मिलियन जो है एल्वियोली पाई जाती हैं, जिनका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, राइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसके नीचे ही क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लंग्स को सम अप करें तो लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द ह्यूमन थैरोकिक कैविटी, जिनका कलर कैसा होता है, रेड होता है, शेप कैसा होता है, कोनिकल होता है, और जो राइट लंग है वो थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। जो ईच लंग है इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स भी पाया जाता है, जिससे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग इज नोन एज एल्वियोली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक लास्ट जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट ऑर्गन है। तो देखिए, द लोअर पार्ट ऑफ द थैरोकिक कैविटी क्लोज्ड बाय अ बेंड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको डायफ्राम कहा जाता है। और डायफ्राम जो थोरैक्स कैविटी है, थोरैकिक कैविटी है, उसको एब्डोमेन कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। और ये एक्सहेलेशन में या
ब्रीदिंग में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो ये जो है ये डायफ्राम हो जाएगा, और जो डायफ्राम है उसकी वजह से ही जो है ब्रीदिंग में या एक्सहेल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो यदि ये 11 मार्क में पूछा जाए तो आप डायग्राम बनाकर बढ़िया अच्छा सा उत्तर लिख सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा आपको 1 बाय 1 करके समझाया है। तो लास्ट में हमने समझा डायफ्राम, द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैकिक कैविटी इज नोन एज, राइट, द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैकिक कैविटी, राइट, विच इज क्लोज्ड बाय अ बेंड लाइक स्ट्रक्चर, उसको ही क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। और द डायफ्राम डिवाइड्स thorax and the abdomen, or it plays an important role in the exhalation as well as breathing. So in this way we have studied respiration in organisms, we have studied respiration in plants, aquatic animals, cockroach, right, insects as well as earthworms, and respiration in humans, right. So we have studied respiration in organisms. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.